So, welcome guys. This is the part two of our revision series of APM classes. तो आज हम start करने वाले हैं color development and emerging issues. So, guys, this is one of those topics which was tested in my own APM paper. So, this is very close to me. So, अब बात करना है कि आज की डेट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट like we have studied that okay पहले हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट and this was covered in our PM area as well कि सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री नहीं करता है, वो उससे ज्यादा और भी कुछ काम करता है। बट अगेन इसके काम की अगर मैं बात करूं जो कि हमने कवर किए थे हमारे पीएम सिलेबस एरिया में, दैट यस वी हैव नाउ अदर एरियाज विच इंक्लूड द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंट। तो अब देखो, अब कंपनीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के रिगार्डिंगली इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड करें एंड दे should know that okay how the environment or the changes in environment is gonna to impact their business, and if they are addressing the environmental related facts, so वो उनकी profitability पे long term growth पे कैसे impact कर सकता है। So there are certain reasons which companies should consider कि yes कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। So yes, society as a whole has become more environmental friendly, aware, and it's also need the concern of the customer relating to environment. तो आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे जो customers हैं, they are also conscious about the environment, the changes in the environment, and okay, we want like green products or recycled products. So these things are in mind of people nowadays. So again, if any company is not following these things, might impact their goodwill. Now, environmental costs have become huge for some companies, particularly those operating in a highly industrialized, such as oil production. So see, environmental cost, certain people, and we will be covering this later on, that okay they will consider कि environmental related हमें expense out करना पड़ रहा है, so this is gonna to be like a loss for us. But if I consider this is not a loss for us in the long run, you have to accept the fact that this is gonna to be profitable for you if you are gonna to invest in such activities. And yes, in certain business regulations, just like the जहाँ पर लाइक स्मोक होता है, वाटर काफी ज्यादा इमिशन होता है, या फिर ऑयल इंडस्ट्री। सो व्हेन यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ environment and you are deploying the resources of environment, it is important for you to consider the environmental related cost in detail. So now regulation is increasingly widely, अब हम ये भी देख रहे हैं कि yes कि if companies are not following the rules and regulation, they might have to pay certain amount of cost with respect to that. So that is gonna to be challenging, and demonstrating as an environmental friendly company and managing these costs effectively to improve the public image. So again, अब मैं इसकी बात करूं कि yes ये जो environmental related cost है, ये जो है कंपनी के लिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने वाली है। लाइक if any company who is considering these costs is prioritize from the companies who are not considering these costs, कि वो इस पे expense out कर रहे हैं, कस्टमर भी इसको कंसीडर करेंगे okay why their product is expensive just because they are using the natural product and okay they are recycling the product। तो इस फैक्ट को जो है कस्टमर भी कंसीडर आज के टाइम पे करता है। सो अब ईएमए क्या है? दैट मीन्स ईएमए अकाउंटिंग इज सिंपली अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग that is concerned with the accounting information need of manager in relation to corporate activities that affect the environment as well as the environmental related impact on the corporation. So it is important to note that this point that focus of environmental management accounting is not on purely financial cost, it include the consideration of matters such as। तो अब आज की डेट में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ मैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड खर्चे नहीं, बाकी मैं उसके रिगार्डिंगली और मैटर्स भी देखूं कि इसकी इन्वायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मुझ पे और होने का चांस कितना है। लाइक तारा मॉडल, लाइक it is just like that okay I need to consider okay if I am not following this, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों का हमें कंसीडर करना है। एंड यस अगर आई एम यूजिंग द इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सो वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं विच आर गिविंग मी आइडिया अबाउट दैट। एंड अगेन आई नीड टू मॉनिटर द यूसेज एंड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज जस्ट लाइक द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी।
सो उनको यूज करने के ऊपर मेरे को क्या कॉस्ट पड़ सकती है। सी देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर फेवरेबल, देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर अनफेवरेबल फॉर मी। सो अब मुझे ये देखना है कि कौन से खर्चे मेरे बिजनेस के लिए फेवरेबल है और एडवर्स, एंड उसका मेरी पब्लिक इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आई नीड टू कंसीडर दैट एज वेल। सो कंसीडरिंग ऑल दिस आई विल बी इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट जो कि मेरे बिजनेस एरिया के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो ईएमए इज जस्ट ऑल अबाउट दैट, कंसीडरिंग द इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट। अब लाइक द इफेक्ट ऑफ ईएमए ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर जो ये ईएमए है उसका किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो it could improve the revenue because obviously I am investing in a business area जो कि इन्वायरमेंट को कंसर्न कर रहा है। सो वो इन द लॉन्ग रन क्या करेगा, मेरे बिजनेस का रेवेन्यू जो है इम्प्रूव करेगा, एंड अगेन कॉस्ट रिडक्शन बाय एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्रूविंग द प्रोसेस। तो देखो अगर मैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट जो है कंसीडर करूंगी तो उससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट में रिडक्शन होगा। मेरा एक बार तो कंपनी की कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, बिकॉज आई एम फुलफिलिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। तो कंपनी को रजिस्टर कराऊंगी, उसके रिगार्डिंगली खर्चे, कौन से खर्चे बढ़ने वाले हैं, comply related, that I am complying that. But on the other hand, if I am using the resources in a best possible manner, so that will improve my efficiency level and that will reduce my cost at overall level. And yes, cost of failure resulting from fine and penalties. So अगर मैं उसको follow नहीं करूंगी तो again fine and penalties जो है मुझ पे लग सकती हैं, and these costs are gonna to be chargeable against me. So yes, I need to consider कि yes EMA related मेरे पास कौन कौन से खर्चे जो है अराइज हो सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट। हमें पता होना चाहिए इस व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट आर इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट। So much information that is needed to prepare the environmental management accountant could actually be found in a business journal ledger. So देखो अगर मैं बिजनेस की कुछ कॉस्ट की बात करूँ तो वो मेरे बिजनेस के जर्नल लेजर में अवेलेबल होना चाहिए। अब उसका अगर मैं रिव्यू करूं, देखो कि मेरे पास कौन कौन सी इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस दैट यस व्हाट कॉस्ट आर माय बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट। सी देयर आर सर्टेन कॉस्ट व्हिच आर हिडन and there are certain costs which are visually appealing. So I need to understand which costs are my hidden, that means they are part of some other cost. So अब environmental की costing को मैं अगर divide करूँ तो वो कौन कौन से level में divide होती है, right? So internal cost, improve system and check in to order the penalties. So देखो internal cost जो कि मेरे business area के अंदर आती हैं, they are my internal cost। जैसे कि जो इंटरनल लेवल पे करूंगी, अगर मैं रेगुलेशन की कॉस्ट भरूंगी, ये कोई परमिशन लेनी है किसी लाइक साइट है उसके रिगार्डिंगली कोई परमिशन लेनी है, उसके रिगार्डिंग कोई कॉस्ट है, बैकएंड की कॉस्ट है, मतलब ये सारे कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंटरनल होते हैं। एंड नाउ एक्सटर्नल कॉस्ट जो कि कंपनी नहीं बिल करती है बट कंपनी की एक्टिविटीज के कारण ओवरऑल लेवल पे सोसाइटी को वो है बियर करना पड़ता है। जस्ट लाइक टेकिंग द एग्जांपल, लाइक यूसेज ऑफ एनर्जी एंड वाटर, वो कॉस्ट हो गई। अगेन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की कॉस्ट हो गई, कार्बन एमिशन कॉस्ट होगी। सो government are trying to convert these costs into internal costs by using the taxes and regulations. So अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सो दैट विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस एंड अदर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये कॉस्ट क्या है कि कंपनी की एक्टिविटीज के कारण ये कॉस्ट जो है अराइज होती है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉस्ट हो गया। अब मेरे पास इन्वायरमेंटल कॉस्ट को मुझे रिकॉर्ड कैसे करना है, दिस टाइप ऑफ एरिया वाज टेस्टेड प्रीवियसली मेनी टाइम्स। कि अब देखो इनपुट आउटपुट और फ्लो आउटपुट एनालिसिस। तो मतलब ये क्या है कि यस कि इफ आई हैव स्टार्टेड द प्रोडक्शन, मैं 100 kg इनपुट डालूंगी तो मुझे 100 kg आउट होगा। वो मे बी लाइक इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन होगा, मे बी दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज, मे बी इन द प्रोडक्शन फॉर्म ऑफ द स्क्रैप, बट आउटपुट जो है मेरा 100 kg ही होगा, उससे कम नहीं होगा। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा एक्चुअल में आउटपुट कितना है। नाउ this techniques record the material inflow and balance this with the outflow on the basis of what comes in must goes out. So ये क्या कह रहे हैं,
कि यस कि जितना आया है वो जाएगा ही जाएगा, एंड वी विल बी अकाउंटिंग फॉर ऑल द एरियाज, लाइक कि जो मेरा आ रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, एंड हर एक लेवल की मुझे कॉस्टिंग जो है मुझे वो चेक करनी है। नेक्स्ट इज मेरे पास flow cost accounting. So this technique uses not only material flow but also organizational structure. It makes material flow transparent by looking at the physical quantities involved, their cost, their value. It divides the material flow into three categories: material, system, delivery, and disposal. So the value of cost of each of these flows are देन कैलकुलेटिंग। तो देखो अब मेरे को क्या करना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर लेवल पे मुझे जो है कॉस्टिंग जो है कैलकुलेट करनी है, एंड देन मुझे देखना है कि यस वो कॉस्टिंग एक्चुअल में है कितनी। सो यस इफ आई विल बी लुकिंग एट द एरिया, तो यस द एम ऑफ लो कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू रिड्यूस द quantity of material which as well as having the positive effect of environment and should have a positive effect on business टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। तो अगर मैं ये देखूं कि ये कॉस्ट क्या है, कि उस इन्वायरमेंटल रिलेटेड एरिया का मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आई शुड कीप दैट इन माय माइंड, राइट। अब नेक्स्ट इज मेरे पास activity based costing, and this is something which you might have covered many times in your syllabus area. So activity based costing क्या है, देखो एक्टिविटीज के बेस पे हम कॉस्टिंग करते हैं कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज उस कॉस्ट को क्रिएट करती है। सो एबीसी जो है इंटरनल कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट ड्राइवर के बेस पे एलोकेट करना। कौन सी कॉस्ट, इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट, मतलब कि जो ज्वाइंट कॉस्ट सेंटर से मेरी इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट आती हैं, आई कंसीडर दोज कॉस्ट ओनली, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल बी कंसीडरिंग कि यस कि ये कॉस्ट जो है मेरी लाइक इन्वायरमेंटल रिलेटेड है। And yes, there are certain costs which are not directly visible, they are hidden. So I will be considering कि yes वो जो hidden cost है उनको मुझे कैसे डील करना है। Now next is the life cycle costing. Life cycle costing कौन सी होती है हमारी, that means, and this is one of the most important area, मैं उस प्रोडक्ट की थ्रू आउट द लाइफ में होने वाली सारी कॉस्ट को कंसीडर करूं, दैट इज द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सो विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक विच रिक्वायर द फुल इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग, मतलब कि उस प्रोडक्ट का मेरी प्रोडक्ट की लाइफ के ऊपर, पूरी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, मैं वो कंसीडर करूं थ्रू आउट द लाइफ। सो अब वो क्या है, कॉस्ट जो है द कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन टू बी टेकन अक्रॉस द होल ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, मतलब कि प्रोडक्शन से लेके एंड तक, मतलब उससे पहले वाले भी सारे कॉस्ट, मतलब कि उस प्रोडक्ट से लेके आने वाले सारे खर्चे जो कि इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर रहे हैं, मुझे वो सारे खर्चों को कंसीडर करना है। Now up next is the types of environmental related cost. So environment type की कौन कौन सी कॉस्ट होते हैं, फर्स्ट इज environmental protection, मतलब कि वो वाली एक्टिविटीज से आने वाले खर्चे जो कि हम प्रिवेंट में लगा रहे हैं, मतलब कि environmental related वेस्टेज हो ही ना, लाइक ऐसे कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस जो है स्मूथली चले, उसके लिए मैं पहले से ही कुछ एक्सपेंस आउट कर रही हूँ, दीज आर माई प्रिवेंशन कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज डिटेक्शन कॉस्ट, जो कि कौन सी है कि यस कि आई नो दैट केस मैंने कंप्लाई तो किया, बट देयर कुड बी सर्टेन सिनेरियो कि कुछ मिस आउट हो सकता है, तो उसको देखने के लिए टू जस्ट मेक श्योर दैट आई एम कंप्लाइंग विद द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, आई एम डूइंग दिस डिटेक्शन कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज माय इंटरनल फेलियर कॉस्ट, cost resulted from the activities that have produced wastage which has not been dispatched into the environment। वो वाली एक्टिविटी से रिगार्डिंगली कॉस्ट जो कि वेस्ट से अराइज हो रहा है, और वो वेस्ट जो कि अभी इन्वायरमेंट में नहीं एंटर हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज आई एम इन्वेस्टिंग इन सर्टेन एरिया जो कि अभी इन्वायरमेंट में कंसर्न उसका अभी राइज नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट कौन सी होती हैं, जो कि एक्सटर्नल फेलियर के कारण आती हैं। सो द कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज दैट हैव प्रोड्यूस वेस्ट बट विच हैज बीन डिस्पोज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। अब जो मेरी इन्वायरमेंटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, वो मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि यस कि आई वाज नॉट एबल टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो मैं उसका चेक लगा रही हूँ और वो पहले ही खर्चा मुझे पता चल गया।
एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है कि मैं मुझे वो पता नहीं चल पाया एंड वो खर्चा बाद में अराइज हो रहा है, दीज आर माई एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, लाइक फाइन्स पेनल्टीज कुड बी पार्ट ऑफ दिस एरिया। नाउ नेक्स्ट इज ईएमए एंड टीक्यूएम। टीक्यूएम क्या होता है? हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मे बी यू हैव नॉट डन दिस नाउ, बट यस वी हैव डन दिस इन योर PM area. So yes, it is important to understand EMA and TQM are somehow linked. देखो environmental management accounting क्या होता है कि environmental related खर्चों को कंसीडर करना। ऑन द अदर हैंड TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब मुझे क्या कंसीडर करना है कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉस्ट को मैं TQM में कैसे इनकॉर्पोरेट करूं, मतलब कि मतलब जीरो पोल्यूशन टोटल एंड जीरो वेस्ट, जीरो एक्सीडेंट, मतलब कि सब कुछ इन्वायरमेंटल रिस्पेक्ट से टोटली परफेक्ट हो, दैट इज द TQM and EQM combined. So yes, I need to make sure that my clients are happy just because of I am spending money in respect of my quality related areas. Now next is my league table. So league table क्या होता है? Like you might have seen that in match we have this like tablet form, right? So league table क्या है? Standings ranking chart or ladder is a chart or list which compare the sports team or institution, national or companies by ranking them in order to ability of achievement. So मैं क्या कर रही हूँ? आपको रैंक कर रही हूँ बेस्ड अपॉन योर लाइक वर्क अचीवमेंट, की आपकी प्रोग्रेस कैसे रही, कम रही, ज्यादा रही। So yes, a league table may list several related statistics, but these are generally sorted by the primary one that determine their ranking. Many industries and institutions may compete in league table and order to bring the new customer in client. So देखो अब बेसिकली अगर मुझे देखना है कि कौन सी कंपनी, कौन सी like maybe which school or maybe which organization is doing well. So in the league table I have the option to in a very visually appealing way कि मैं ये डिफरेंस जो है देख सकूं कि रैंकिंग वाइज किसका अच्छा आ रहा है। सो जिसकी रैंकिंग अच्छी आ रही है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। सो दिस इज समहाउ मेरे पास एक ऑप्शन है ये देखने का कि कौन लाइक लाइक एरिया वाइज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीग टेबल, जिसमें क्या होगा कि यस कि मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल की तरह इसको काम कर सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटी। अब क्वालिटी रिलेटेड एरियाज में क्या देखना है? क्वालिटी क्या है कि यस कि मुझे ये देखना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है इट इज डिफेक्ट फ्री। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी? deficiency significance variance is the ability of your product to be able to satisfy for your users. In today's highly competitive environment, a quality product will provide a competitive advantage to those who struggle for it. A proper quality management system to be implemented to ensure proper planning and controlling activities so that the product and services are according to the need of customer. So देखो ये जो क्वालिटी वाला है मैं इस पे क्या कंसीडर करूंगी कि यस क्वालिटी पे मुझे फोकस करना है टू मेक श्योर दैट यस माय प्रोडक्ट comply with the requirement of my customer in terms of quality. So अब quality related क्या होता है मेरे पास being a in today's time period it is very important that I am considering my customer's request because customer is the king. If he is not satisfied he will jump back to another competitor. So yes, I need to make sure that quality related controls are implemented in my organization. So quality control क्या है? It is the implementation of regular testing and procedure and routine steps to measure to ensure that the quality of product. तो मैं क्या कर रही हूँ? रेगुलर बेस पे चेक्स लगा रही हूँ कि यस मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है मीट हो रही है या नहीं हो रही है। एंड आफ्टर दैट क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस क्या है कि यस कि मेरा प्रोडक्ट जो है मेरे यूजर्स की रिक्वायरमेंट की सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो अब ये कौन करता है? मे बी थर्ड पार्टी करते हैं सो दैट मेक श्योर दैट यस इंडिपेंडेंट पर्सन इज चेकिंग वेदर द क्वालिटी इज बीइंग मेट और नॉट। अब क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी है हमारे पास? लाइक कंफर्मेशन कॉस्ट, नॉन कंफर्मेशन कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट,
इंटरनल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट। सो दीज आर द कैटेगरीज जो कि मेरी क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट में आती हैं। देखो, कंफर्मेंस में मेरी प्रिवेंशन और अप्रेजल आती है, नॉन कंफर्मेंस में मेरी इंटरनल और एक्सटर्नल कॉस्ट आती है। Now, what are my prevention costs? Again, we have done the EMA related area. So ये EMA वाली जो क्वालिटी वाली कॉस्ट है, ये उसी से ही लिंक्ड है। So now, prevention costs relate to the activities whose purpose is to reduce the number of defects in the first place, because it is much or less costly to prevent a problem for ever happening than to find the correct problem after it has occurred. तो मैं क्या कर रही हूँ कि वो बाद में उसको मैं ढूंढूं, उससे पहले ही मैं ये प्रिवेंट करने में ये खर्चा लगा रही हूँ। दैट मीन्स कि आई एम इन्वेस्टिंग इन अ like an expense which make it sure that yes, something wrong never happens, or it should not happen. So these are my quality related costs. Now, prevention cost. Now, appraisal cost क्या है कि उन एक्टिविटी से रिलेटेड, अप्रेजल में ना टेस्टिंग होता है, लाइक टेस्टिंग करना, इंस्पेक्ट करना कि टू चेक द लीगल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट और नॉट, कि यस कि मेरा जो प्रोडक्शन हुआ है, जो मेरा प्रोसेस चल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट है या नहीं। और अभी ये प्रोडक्ट जो है अभी कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है, ये फर्स्ट हैंड की सिचुएशन है। प्रिवेंशन मतलब कि डिफेक्ट हो ही ना, अप्रेजल अगर डिफेक्ट हुआ है तो हम उसको चेक कर लें। इंटरनल फेलियर कॉस्ट की यस कि मैं उसको रिजल्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, confirmation with the design specification before they are shipped to the customer. These costs include scrap, rejected products, reworking of defects, downtime costs due to quality problems. The more effect of the company appraisal activities, the greater chance of catching defect internally and the greater level of internal failure cost. So ये कौन से खर्चे हैं, मतलब कि मैं पहले ही फर्स्ट हैंड पे ही वो खर्चे कर लूं, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी अगर स्टैंडर्ड को फेल कर गया है तो वो कस्टमर के पास पहुंचे ना, वो वाले खर्चे उससे पहले, उससे कस्टमर के पास पहुंचने से पहले वाले खर्चे में कंसीडर कर रही हूँ। एंड देन लास्ट वन इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, मतलब कि वो खर्चे जो कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया है, defective product is now with my customer, and considering that I am expensing certain areas, so वो कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे अब वारंटी देना पड़ रहा है, and yes I need to replace the defective product, so ये खर्चे कौन से हो गए, मेरे external failure cost के खर्चे। So I need to consider all the expenses, internal वाले, external वाले, prevention वाले, appraisal वाले, while considering the quality related cost, and I need to consider their relevance as well. Now, quality practices. See, you can expect any of the area from these questions. So, quality practices में मेरे पास सबसे पहले क्या आता है, JIT, which is just in time. तो just in time क्या होता है, like it is a full system of production. So actual order provide a signal for when the product should be manufactured. Now, demand will enable a firm to produce only what is required and in the correct quantity and the correct time. So देखो, ये सारे सिस्टम क्या है, हमारे वो सिस्टम है जिसमें हम जो है वेस्टेज की रिडक्शन के ऊपर जो है फोकस करेंगे। अब वो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जितनी जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही प्रोड्यूस करूं, जस्ट इन टाइम। सो इस सिस्टम में व्हाट आई नीड टू कंसीडर इज दैट यस, जो प्रोडक्ट बनाओ जिस टाइम पे बनाओ, पहली बार बनाओ, अच्छे से बनाओ, विदाउट वेस्टेज बनाओ। एंड इसमें मेरा कम्युनिकेशन चैनल्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरा सप्लायर्स के साथ जो है काफी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, बिकॉज आई शुड have the confirmation that my supplier will be supplying me the material when it is required. So again, JIT applies to primarily to the repetitive manufacturing process in which the same product and components are produced over and over again. This means that the stock level of raw material, components, work in progress, finished goods can be kept at minimum. So the main focus here is that I need not to have good level of stock, because I want to eliminate the extra additional stock, मेरा wastage कम हो, मेरा stock कम हो। and yes, इससे क्या होगा कि मेरा जो product है वो outdated नहीं होता है, and customer की requirement के accordingly on demand I am providing the services.
So ये it applies to both purchases with the external suppliers so that in order is placed when the customer order is placed. तो देखो मैं अपने पास ना कोई रॉ मटेरियल नहीं रख रही हूँ ज्यादा। जैसे जैसे कस्टमर मुझे ऑर्डर कर रहा है मैं तब तभी खुद से परचेज कर रही हूँ, एंड देन आफ्टर दैट आई एम प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड आई एम सेंडिंग इट बैक टू द कस्टमर. So the next stage is passed on their own, just like the way. Now, इसके if I consider what are the advantages of JIT system, देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉक कम रखना पड़ेगा, एंड जिससे क्या होगा कि यस की मेरा रेंट खर्चा, इंश्योरेंस मुझे कम करना पड़ेगा, एंड अगेन मेरा वेस्टेज कम होगा, अगेन प्रोडक्ट आउटडेट नहीं हो सकता है, एंड यस कैपिटल मेरा जो है प्रोडक्ट में टाइड अप ज्यादा नहीं होगा, एंड यस अनफिनिश्ड गुड्स और अनसोल्ड गुड्स मेरे पास ज्यादा नहीं रहेगा इस केस में. And yes, I am not just investing my time in checking that yes, whether the product meets the customer specification or not, because I know that I am manufacturing the product as per the customer request. Now, what are the disadvantages of this? So, considering the disadvantages of JIT system, देखो, there is a little room for mistake as minimal stock is kept for reworking or faulty product. So, देखो मैं जो है स्टॉक ज्यादा नहीं रखती हूँ. So in that case, I don't have the option key, like so that I can send my product to next stage and next stage. So मेरे पास स्टॉक लेवल जो है काफी ज्यादा कम रहता है. So I can't bear कि अगर कल को फ्यूचर में कोई नुकसान हो. Production is very reliant on supplier, and if stock is not delivered on time, the whole production schedule can be delayed. So देखो जो मेरा प्रोडक्शन है that is totally dependent upon the suppliers. So अगर suppliers के ऊपर मैं डिपेंडेंट होने की बात करूंगी तो उस वाले केस में क्या होगा कि इसकी मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है डिले हो सकता है, and there is no spare finish products available to meet the unexpected orders because all the product is made to meet the actual order. However, JIT is very responsive method of production. So अगर मैं बात करूं कि यस मेरे पास ना कोई फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं होता है इस वाले केस में, एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी कि यस कि मेरा कम्युनिकेशन चैनल अच्छा हो, है ना. और कई बार क्या होता है कि मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरिया, because मैं because I don't have that level of production in my back end, एंड मेरा जो स्टॉक भी है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो जिसके कारण सम टाइम आई एम नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ माय कस्टमर्स. नाउ JIT के रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है, देखो JIT प्रोसेसेस समहाउ रिलेटेड विद अदर प्रोसेस. सो JIT में मुझे क्या करना है, सारी एक्टिविटीज जो मेरे लिए नॉन वैल्यू एडिंग, मतलब कि कस्टमर के लिए वो वैल्यूएबल नहीं है, मुझे वो सारी एक्टिविटीज को हटाना है. जस्ट लाइक द एंड अगेन आई शुड कंसीडर कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वैल्यू क्रिएट ना करे, जस्ट लाइक द वेस्टेज. एंड throughput rate should be high, and its high rate of converting raw material into finished goods into sale, minimize the inventory level, competent and training staff, up-to-date machinery with proper maintenance plan, and good long-term relationship with supplier. We have already covered all these point. केस मेरा स्टाफ अच्छा होना चाहिए जिसको ऑलरेडी पता हो कि कैसे काम करना है, सो दैट उनको ट्रेन करने में टाइम ना लगे, इन्वेंट्री कम रखें, फिनिश गुड ज्यादा से ज्यादा फटाफट कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि वेस्टेज कम हो. एंड यस मेरा सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए सो दैट कि सप्लायर वन वो में ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे वेन एवर आई नीड दैट अकॉर्डिंग टू माई प्राइस दे आर सप्लाइंग माई प्रोडक्ट according to my requirement. Now, the next term, TQM, Total Quality Management. Of total say you will be getting the idea that we are focusing on the total quality related area. So yes, TQM क्या है? It is a quality related measures, and it focusing on the continuous improvement, because we feel that in one go we can't get 100% quality, because every time there is a continuous improvement in the production plan. So that's why we need to focus on the continuous improvement, and we also need to make sure that doing it right for the first time, कि मैं जो काम करूं पहली बार में ही सही काम करूं, and striving for the zero defect and elimination of all the wastage. So मैं waste कोई भी ना हो, zero defect हो. And yes, management की क्या पॉलिसी है कि yes कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे फैक्टर, सारे फंक्शन, बी द मार्केटिंग, डिजाइन, सारे के सारे जो है सबके सब जो है मिल के कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं.
So yes, they consider that okay, the quality is not the responsibility of only one person who is just involved in the production process of the organization. It is the responsibility of the organization level. सारे के सारे लोग जो हैं, suppliers, customers, सभी के सभी लोग जो है मेरे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में लगते हैं. अब जैसे कि अगर मेरे पास पीछे से सप्लायर से ही प्रोडक्ट जो है अच्छा नहीं आया है, सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट मेरा प्रोडक्शन जो है अच्छा हो पाएगा, बिकॉज माई रॉ मटेरियल इज नॉट गुड. अगेन प्रोडक्शन रन अच्छा होना चाहिए, अगेन मेरा लेबर जो एफिशिएंट होना चाहिए, सो प्रोसेस अच्छे होने चाहिए. सो अगेन कस्टमर शुड बी इन अ पोजिशन टू स्पेसिफाई मी वट देयर रिक्वायरमेंट्स एंड वट देयर फीडबैक इज इन माई प्रीवियस प्रोसेस, so that I can work on improvement. So yes, TQM focus on the premise that quality of the product and process is the responsibility of everyone who is involved within the creation or consumption of the product or services offered by organization, जैसे कि मैनेजमेंट, वर्कफोर्स, ताकि सबके ऑब्जेक्टिव्स जो है मीट हो जाएं, सबकी एक्सपेक्टेशंस मतलब कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस में सब लोग जो है अच्छे से इन्वॉल्व. So yes, again, if I discuss about the features of TQM, so TQM focus on the continuous improvement. मतलब कि it is a continuous improvement every time we are just focusing on the improvement of our product. So improvement is not just at one level; it is the improvement at all level. That means like from the like lower level, from the top level, everyone in the organization is involved, and it is making sure that the quality of the product meets its specific criteria. So yes, and manage their process through the appropriate process and improvement channel. So हर कोई अपने अपने लेवल पे continuous improvement के ऊपर focus करेगा. It aims of moving the mode, doing it right for the first time, so preventing the error before it occur, resulting in more focus on the prevention. So I am focusing on the prevention. I am just like errors की prevention पे focus कर रही हूँ. So yes, we feel that okay, if we are investing more on the prevention related cost, we need not to invest on the correction related cost. So there is the philosophy कि मेरा prevention cost चाहे ज्यादा हो जाए, but correction cost नहीं ज्यादा होना चाहिए. Now, नेक्स्ट कॉस्टिंग एरिया विच इज माय टारगेट कॉस्टिंग. देखो टारगेट कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक ही है, एंड वी हैव कवर्ड द सेम इन आवर पीएम एरिया, एंड द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर पीएम एज वेल, they can revise their topic from this specific area as well. So target costing is defined as the cost management tool for reducing the overall cost of product over its product life cycle. It revealed that the direct link between the marketplace, corporate long-term profit goal, and cost management practice. In target costing, the desired profit is subtracted from the target price, arrived at the target costing, which reflect the new product should be cost rather than the what it does. So if I try to help you in a very easy go language or in a very layman language, normally क्या होता था कि yes, we used to sell the product at the price the which is prevailing in the market, and again वो कैसे करते थे कि yes मेरा और वो normally what we used to do is मैंने प्रोड्यूस किया, उसमें मेरा इतना खर्चा आया, and based on that I was adding my profit and I was getting my price जिस पे मुझे कस्टमर को बेचना है. But in that way, I was ignoring the price which customer is ready to pay me. And again, I was ignoring the fact that what is the prevailing market price of my industry and my competitor, because I want that profit. So now it is a cost reduction technique where I will be considering, okay, considering the available market price, the customer is ready to pay maximum this much, or my competitors are selling the product at this price. So maybe if the customer is selling the product at 10 and my price is 15. So what I need to consider is that maximum I will be selling my product at 10 only, and now what I need to do, I have to earn the profit, maybe the 20% profitability, and okay, I am getting the 20% profitability in the selling price. So मैं अगर suppose करो 20% profit selling price पे कमा रही हूँ, मतलब कि I am earning the profit of 2. Now 8 should be my cost, but my current cost is suppose 12. So I will be trying to reduce this cost कि ये जो gap है, मतलब कि target cost जो कि मेरी 8 होनी चाहिए and the current cost which is my 12. So I need to invest in such a way, I need to make things such in a way कि मेरा ये cost जो है कम से कम
एंड द गैप इज द कॉस्ट, द कॉस्ट गैप, और मुझे इस कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के वेज देखते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस की ऑफ माई टारगेट कॉस्टिंग. एंड ये जापानीज टेक्नोलॉजीज वाले जो टोयोटा, निसान, टिशोबा कंपनीज हैं, वो सारे ये टारगेट कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस? Due to complete market awareness at the initial phase, it allowed the customer requirement to be incorporated at the design stage, which will make it easy for the market product launch and will lead to development for a better pricing strategy. So देखो, मैं starting में ही customer का analysis कर रही हूँ. If I'm doing the customer analysis at the first stage, I will be able to understand what my customer actually wants, and based on that, I will be producing my product. Now, again, I will be focusing on the planning, and I will be focusing on reducing the cost at the first stage, which is my designing phase. And it is being imagined, and it is being thought that, okay, that जो ये सारे खर्चे हैं, हम प्लानिंग स्टेज पे ही, डेवलपमेंट स्टेज पे ही कम कर सकते हैं, स्टार्टिंग फेज में. And yes, we will be finding out the way of working in a new manner, so that I can find out, like maybe I have to reduce the cost, but without compromising the quality. Maybe I will be finding some alternate sources of suppliers. Maybe I will be eliminating the activities which are non-core or non-value adding to me. And again, I will be considering that, okay, every staff member should be involved, like be it be the engineering department, be it the production department, and they will be doing the brainstorming exercise that yes, what we can do to reduce our cost according to the market requirement. Now, again, there are certain ways which you can suggest, okay, how you can reduce this gap between the target cost and the actual cost. Maybe you will be using the cheap quality material without compromising the quality. Maybe you will be using the external labor source or cheap labor source without affecting the efficiency level. Maybe you are buying the semi-finished products. Maybe you are using the ABC techniques. So you will be using different ways without compromising the quality, but that is good for your cost reduction. Now, the next area, which is Kaizen costing. So Kaizen costing is just like the target costing, उसी के ऊपर base में ही linked area है. So Kaizen costing is a process of continual cost reduction that occur after the product design have been completed and it's now in the production. So cost reduction technique can include working with the supplier to reduce the cost in this process, or implementing less costly redesign of the product, or reducing wastage cost. So it focus on again continuous improvement in performance, not with the radical approach, but using the incremental steps. So देखो ये क्या है कि टारगेट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक बार कॉस्ट कम कर, ये क्या करता है, वो स्टेप बार बार मुझे करते ही रहना है. दिस इज अबाउट द काइजन कॉस्टिंग. मतलब कि कॉन्टिन्यूस कॉस्ट रिडक्शन, एक बार कम कर दिया, नाउ आगे चलते ही रहो, बार बार वी हैव टू कीप पुशिंग आवरसेल्फ दैट ओके हाउ वी कैन मेक थिंग्स बेटर. So yes, ki, I will be redesigning my product according to the fact कि मेरा wastage कम हो, and I am working on the betterment of the product on the continuous basis. So continuous improvement leading to cost reduction. मैं अपने continuous basis पे standard टाइट रखूँ, सारे wastage जो है मैं कम करूँ. That means कि मुझे हर पर्टिकुलर प्रोसेस के एरिया के ऊपर फोकस करना है, सो दैट कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम हो, एंड आई एम incorporating this fact of continuous reduction in my environment. Now, the standards scrutiny continuously so that the cost reduction effects are incorporated into them on a regular basis. This is done by the functional analysis, which is applied at the design stage of the new product. And the target cost for each function is set. So basically मैं क्या कर रही हूँ, हर लेवल पे एक स्टैंडर्ड सेट कर रही हूँ कि ओके आपका कॉस्ट इस पॉइंट पे इतना होना चाहिए, देन ऑन द नेक्स्ट टाइम आपका कॉस्ट इतना होना चाहिए, देन ऑन द नेक्स्ट टाइम आपका कॉस्ट इतना होना चाहिए, एंड आई एम वर्किंग towards that area again and again so that I can reduce my cost at a great level. So the focus should be on eliminating the all kind of waste on a regular basis, as this lead to the cost reduction. Like मुझे क्या करना है, मुझे ओवर प्रोडक्शन नहीं करना, मुझे आइडल टाइम पे वर्क करना है. So yes, I will be focusing on reducing my cost to the maximum level. Now,
difference between standard costing and Kaizen costing. Now, this is something which you were already following standard costing. You might have done the question of standard costing in your, PM पेपर और MA पेपर. So standard costing क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक है. बट ऑन द अदर हैंड काइजन कॉस्टिंग जो है मेरी कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है मेरा करंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैं उसमें चेंज नहीं करती. बट काइजन कॉस्टिंग इट्स जस्ट बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट. एंड यस, अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी वर कंसीडरिंग द लेबर कॉस्ट एज अ ह्यूज कॉस्ट. बट यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, हम स्टाफ के ऊपर कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, स्टाफ कॉस्ट को कैसे बेटर कर सकते हैं, हमारा फोकस इन फैक्ट्स के ऊपर है. अगेन, नेक्स्ट इज द फोकस इज ऑन मीटिंग द cost performance standard. The performance targets are set annually or semi-annually, and the variance analysis meet the comparison between the standard and actual cost. तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, वेरिएंस कर रही हूँ, वेरिएंस एनालिसिस कर रही हूँ कि यस की मेरे स्टैंडर्ड मीट हो रहे हैं या नहीं. मैं हर साल एनुअल बेसिस पे जो है मेरे स्टैंडर्ड जो है सेटल कर रही हूँ. बट काइजन कॉस्टिंग क्या है, मेरी कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है. मैं इसमें क्या फोकस कर रही हूँ कि इस मेरी कॉस्ट को मैं कैसे कॉन्टिन्यूअस लेवल पे इम्प्रूव करके लेके जा सकती हूँ. एंड यस, मैं अपने स्टाफ को इम्प्रूवमेंट लेवल पे देख रही हूँ. एंड यस, मैं कॉस्ट रिडक्शन स्टैंडर्ड जो है हर मंथली ऑन अ ऑनगोइंग बेसिस मैं देख रही हूँ कि इसकी मैं कैसे इन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती हूँ. एंड अगेन, वेरिएंस एनालिसिस यहाँ पर मैं टारगेट और एक्चुअल मतलब जो मेरा फ्यूचर है उसके बेस पे सेटल कर रही हूँ. नाउ अगेन, सिक्स सिग्मा, दिस इज समहाउ द रियलिस्टिक अप्रोच. ये क्या कह रहे हैं कि यस की मेरी जो कॉस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं 100% हम उसको परफेक्ट नहीं कर सकते. एक प्रोडक्ट है, 100% डिफेक्ट फ्री नहीं हो सकता है. सो सिक्स सिग्मा इज बेस्ड ऑन दिस एरिया. सो सिक्स सिग्मा के बेसिस पे मुझे क्या देखना है, इट इज अ डिसिप्लिनरी अप्रोच दैट हेल्प द कंपनी टू फोकस ऑन डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग अ नियर टू परफेक्ट प्रोडक्ट. The central idea is to reduce the number of defects that go beyond the tolerance level, which is done by measuring the number of defects in a process, and that will be eliminating so that the company gets close to zero defects. So basically Six Sigma मॉडल क्या कहता है कि इसमें एक बार को तो जीरो डिफेक्ट्स नहीं लेके आ सकती. आई कांट गेट दैट. सो मुझे क्या करना है कि आई नीड टू वर्क इन सच अ वे कि मेरा जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मे बी 99.999% डिफेक्ट फ्री, एंड दिस इज वेरी गुड. ओके, सो मेरा प्रोडक्ट जो है परफेक्ट के नियर बाय जो है जाए. एंड मेरा कंपनी जो है 100% नहीं हो सकती है. सो एक स्टैंडर्ड हमने कर लिया, जैसे सपोज करो it is in this concept that okay 3.4 defects per million opportunities. तो बेसिकली क्या कहते हैं कि मैं अपना प्रोसेस ऐसे करूं कि 1 मिलियन के बाद 3.4 डिफेक्ट्स जो है हमारे आ सकते हैं. सो इट्स जस्ट अबाउट नेग्लिजिबल. तो एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया, उस स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर आपके डिफेक्ट्स आते हैं तो आपको वो डिफेक्ट्स कंपनी से एलिमिनेट करने जाने हैं. 100% एक्यूरेसी कभी पॉसिबल नहीं है. इससे क्या होगा कि मुझे बार बार जो है अपने प्रोसेस को बेटर नहीं करने की, इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आई वॉन्ट बी स्पेंडिंग टाइम ऑन द प्रोसेस विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय मी. एंड अगेन दैट विल गिव मी मोर ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो इसकी कुछ अप्रोच होते हैं कि यस की एग्जिस्टिंग प्रोसेस को कैसे वर्क करना, न्यू प्रोसेस के लिए क्या करना. सो एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए डीएमए आईसी अप्रोच है, एंड न्यू प्रोसेस के लिए डीएमए डीवी, डिफाइन मेजर, दीज आर द अप्रोचेस. तो अब एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो है हमारे सिलेबस में है, मतलब मुझे क्या करना है, डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव एंड कंट्रोल, जो कि मेरी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस की स्टेजेस है. मतलब कि सबसे पहले मुझे क्या करना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली क्या मेरी प्रॉब्लम है मुझे वो देखना है. देन आफ्टर दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफिकली डिफाइन द प्रॉब्लम. कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जो है मैं ऐसे स्पेसिफाई करूंगी कि यस इज इट पॉसिबल कि वो उसको ठीक करना, राइट. उसके बाद आई विल बी कंसीडरिंग कि ये डिफेक्ट्स को मुझे लॉन्च करना है या ठीक करना है या नहीं करना. एंड देन अगेन Mayat, that yes,
कि मुझे करंट प्रोसेस को देखना है कि इस करंट प्रोसेस कैसे चल रहा है, दैट मीन सो दैट आई विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. If I am not able to get that what is the root cause of the problem, how I can improve that uh, uh, process area. So I will be working on improving the current production process. So after that, analyze the collect data is then analyzed to find out the root cause of the problem using statistical tools and fishbone analysis. So मैं क्या कर रही हूँ, अपने करंट डेटा को ठीक कर रही हूँ, कैसे, टूल्स के साथ, and the processes, and I will be working on the improvement of my production process, and then I will be controlling that yes, whatever I have decided is working in the correct order or not. Now next, न्यू प्रोसेस के केस में हमारे पास बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज द लाइक डिजाइन का, कि ये नया प्रोसेस है तो मुझे एक नया वे ढूंढना है, डिजाइन करना है एंड वेरीफाई करना है कि यस वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं. अब सिक्स सिग्मा के एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कस्टमर से है, राइट. सो ये कि मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा कैसे है, दैट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन द कस्टमर, वी आर फोकसिंग ऑन द इनोवेशन, एंड वी आर फोकसिंग ऑन मीटिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. And yes, we are again focusing on the cost reduction, we are focusing on the profitability, and इससे जो है मेरे फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आएंगे. बट अगेन देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस कि यस कि इतना कम लेवल पे कि मेरा डिफेक्ट्स आए, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसको इम्प्लीमेंट कराना. And Six Sigma gives emphasis on the rigidity of the process, which basically contradict the innovation and kills creativity. The innovative approach implies division in the products, redundancy, unusual solution, insufficient data, which are opposite to Six Sigma principle. अब देखो Six Sigma क्या है, कि किसके ऊपर फोकस करता है कि मेरा प्रोजेक्ट कितना रिजिड है, मतलब कि इनोवेशन के रिस्पेक्ट में. सो इट इज वर्किंग ऑन दैट एरिया. Six Sigma implementation constantly requires skilled manforce. The control and employee dedication are hard to accomplish, and if it is not implemented gradually. So ये किसके ऊपर फोकस है, मैन फोर्स के ऊपर फोकस है. एंड ये सिक्स सिग्मा सेट टाइट टारगेट बट स्टिल एक्सेप्ट फेलियर, मतलब कि इसमें मुझे क्या करना है, टारगेट लेवल मुझे टाइट करना है, बट अगेन दिस इज गोना टू मेक श्योर कि इसकी मेरे ऑब्जेक्टिव जो है लाइक टारगेट तो है, like I am settling that okay in almost zero, but again कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स हैं तो वो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम. Now, the last topic area of now, this session is value based management. So value based management मतलब कि मेरे को क्या फोकस करना है, शेयर होल्डर की वैल्यू क्रिएशन, शेयर होल्डर की वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस. सो दैट मीन्स कि मैनेजमेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए कि यस मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, सी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव इज अगेन द profitability in the short run, but in the long run my main objective is to maximize the shareholder value. And again it could be the regarding the environmental goals depending upon the organization. So इस मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूस बेस पे क्या फोकस करना है कि इस क्या मैं करूं कि यस की मेरी कंपनी की जो है वैल्यू क्रिएट हो जाए, एंड दैट्स व्हाई आई विल बी फोकसिंग ऑन द वैल्यू ड्राइवर्स. सो अब लाइक मेरे लिए वैल्यूएबल क्या है, मुझे वो एरियाज पे उन स्टेप्स पे फोकस करना है. सो लाइक मेयर्स लाइक रोज ईपीएस वर ट्रेडिशनली यूज टू मेयर द शेयर होल्डर वैल्यू, बट वो मार्केट वैल्यू की कंपनी से रिलेट नहीं करते हैं. सो बीबीएम से अब मुझे क्या पता चलेगा, न्यू मेयर्स पता चलेंगे. EVA, it is a formula based approach and you can expect a long question from the EVA. And next is market value added. So EVA is economic value added. So MVA क्या है? Is calculated by accompanying EVA generated by the organization over a time. तो for a period of good 5 years 10 years की कैसे कैसे EVA generate कर रही है मेरी कंपनी. Then yes, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक क्या क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू में इंप्रूवमेंट हुई है. लेट ओके शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया 10, नाउ मे बी इट्स द वैल्यू इज 20 30 40 50, तो वो क्या है. एंड पॉजिटिव एमवीए represent the value addition whereas the negative represent the value destroyed. So अगर मेरा ईवीए जो है अगर पॉजिटिव है, सो मतलब कि मेरी वैल्यू जनरेशन हो रही है, बट अगर मेरा ईवीए जो है नेगेटिव है, दैट मीन्स मेरी वैल्यू जनरेशन जो है नहीं हो रही है.
सो यस, नेक्स्ट इज द शेयर होल्डर एनालिसिस, मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंट शेयर होल्डर्स की वैल्यू कंसीडर कर रही हूँ रादर देन सिंगल इन्वेस्टमेंट बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो टेक्निक्स. So different valuation techniques could be used on the basis of further dividend growth, earning and free cash flows. So मैं different different basis जो है इसमें use कर सकती हूँ. And again, now next is हमारा लाइक यू नो, इसमें मैं क्या करूंगी, स्ट्रेटजी बनाऊंगी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लेवल. आई विल बी सेटलिंग द यू नो द प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द like you know the shareholders value generation. I will be considering the budgets, and again I will be providing the incentive schemes just to make sure that the performance have been achieved by the organization. So see, these are the certain the techniques. And last but not the least कि मेरी organization में internal और external factors में अब आज की date में क्या change हो गया है. See, yes, we have seen a change, maybe the technological change. मेरा organization जो है आज की date में fast paced environment है, real time base पे हम जो है changes भी देख सकते हैं. And yes, we have the information available of different scenario according to the different time scale. And yes, it is very important for us to make sure about the changes of the environment in today's time period. Now, again, increase the use or scope of PM. That means कि मेरा focus जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों के ऊपर है. अर्लियर क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल के ऊपर फोकस होता था, बट अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम the focus is more on the non-financial as well, and I am involving the management persons in the daily process. Next is governance. The increased focus on the corporate governance is due to the corporate scandal has resulted in the organization to demonstrate the good corporate governance. So अब इसके क्या है, मेरा जो इसमें है ज्यादा फोकस हो गया है. एंड यस, रेगुलेशंस भी है हमारी यहाँ पर ज्यादा हो गई हैं विद द चेंजेस इन द टाइम पीरियड. See guys, this was all about this part. And again, I will be uploading one more session of the revision series today. So make sure to be connected, and I will be posting, and I will try to solve one long question in this revision series as well. So till then, be connected and revise your syllabus. Thank you.